Ladies and gentlemen, we have a big election on the 25th, that is tomorrow. This is the state of Rajasthan, and who understands Rajasthan and its polity will tell you that this is a pendulum state. A state that continues and it believes in rotating governments. You've seen an Ashok Gehlot government there, marred with charges of corruption, paper leak, crime against women, the Lal Diary conversation, the list is long. And leading that entire battle versus Ashok Gehlot has been the BJP. The Prime Minister has been out there campaigning. He's raked a lot of issues. And a minister from the Prime Minister's own team there is Gajendra Singh Shekhawat ji, who hails from the state. And he's also been camping there, canvassing widely, very, very popular, said to be very close to the Prime Minister and also to the Union Home Minister Amit Shah. Gajendra Singh Shekhawat ji, the Union Minister, is speaking to us, sir. Thank you so much for your time. It's been a hectic campaign. Are you winning these elections, sir? And if yes, why? 100%. It is now inevitable that BJP is coming into power. The Congress is going out. It is as true and as firm that tomorrow's sun is going to rise from the east. Now, Gajendra Singh Shekhawat ji, I do know you're a man of few words. It's very difficult to get you to talk. But tell me something. Why do you believe it's the BJP winning this election? Now, Ashok Gehlot claims that he's very popular. There's a lot of anti-incumbencies admitted against his own MLAs. But he says, I am popular. There are a lot of welfare schemes that he says he's been working on ground, right from a Chiranjeevi to a lot more schemes. Do you think that could change the narrative? Could that give an edge to Ashok Gehlot? See, I am observing, and directly, indirectly, I am a part of Rajasthan's election for last more than 30 years. Since 1993, when I had given up my student leadership, I have completed my student leadership tenure as a president of the University. I am part of this electioneering in Rajasthan. Normally, whenever a government comes or a people's representative who gets elected in any of the position, maybe municipal corporator or sarpanch in Panchayati Raj or in different positions in Panchayati Raj, maybe MLA or MP, or he gets the chance to lead the government or work as a part of the government. Normally, chota-mota anti-incumbency sort of things remains there because you cannot satisfy 100%. No one can satisfy 100% people or electorals. But here is the absolutely different case where the people of Rajasthan are such angry and annoyed with present government that they have taken a commitment throughout the present government of the day, out of the chair of the power. I can clearly observe that people of Rajasthan are contesting election. People are of Rajasthan because they feel they have been cheated. That's why they are committed to throw out the present government, the present political party out of the government. Okay, so you essentially believe, sir, that how the battle has shaped up is Ashok Gehlot versus the people. It's the people in the state of Rajasthan who will be voting to ensure that Ashok Gehlot and all the kind of alleged corruption, the conversation about the Lal Diary, you believe these are real issues. Now, Lal Diary we all know, whether it's a Jain Hawala case to the Sahara Birla diaries, nothing really stands in court. So the allegation from the Congress's camp, Union Minister ji, is the fact that this has just been raked up so close to the elections to create a narrative. असली में वो कहते हैं उस लाल डायरी में कुछ है ही नहीं. See, in this tenure of 5 years of this government, the MLAs of Congress party have created new high benchmarks of corruption in their respective areas. People feel that they have been looted. People feel that they have been cheated.
the corruption in the quantum of the corruption, what the local MLAs have done, in the postings, in the transfers, they were having hands and gloves with mafias, the Bazri mafias, the liquor mafias, the land mafias. The people are so annoyed and angry with the MLAs of Congress party. So it is not only Ashok Gehlot versus the people. It is against the Congress public representatives and the people in their domain. Today, you just wrote down in your diary, when the results will be announced on 3rd of December, you will see and you will find yourself that how correct my words were. That majority of the MLAs of the ruling government are going to be defeated so badly. People are going to vote against them as if they are taking revenge of the corruption and the cheatings what the MLAs have done. And the other thing about the corruption, what you have said and mentioned about the Lal Diary. See, there are many cases of corruptions against this government in the various departments of the government, various ministries of the government. Maybe it is illegal mining, maybe it is illegally allotment of mining, maybe it is the midday meal, maybe it is the Department of IT and Communication, maybe it is in the road construction. All the departments, the transport, all the departments, everywhere there is a corruption. And corruption cases are so evident, backed up by the documents. When you connect these dots with the words which have been mentioned and written in the Lal Diary, then other evidences are not going to be required. They are open and shut cases. There are foolproof cases of corruption of this government. See, never you have been observed that in the government offices, lockers, the money is being recovered. The gold bars are being recovered. And when ED comes and they recover the kilograms and kilograms of the gold, this is for the first time where it is happening in the state of Rajasthan, and government is trying to just conceal, just hide all these corruptions. So it is the corruption which has been made by this government is so evident, it is so proved, people are aware. Hundreds of corrupt files of corrupt practices are lying with the people. They are roaming around with that. So it is not like that ki Jain Hawala case and other diary case which you are mentioning and comparing with. Okay, so you say the Lal Diary has clear, distinct proof of the corruption of Ashok Gehlot. I do remember, sir, the Prime Minister during one of his campaigns spoke of a quote-unquote Delhi Darbar vis-a-vis the Lal Diary. तो आपको लगता है कि जो लाल डायरी है, इसका दिल्ली दरबार से भी कनेक्शन है? क्या कांग्रेस के हाई कमांड से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है? निश्चित रूप से कनेक्शन है जी. उस लाल डायरी के पन्ने में लिखा हुआ है कि प्रियंका गांधी जी का सचिव जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तो छुपने के लिए यहाँ फरारी राजस्थान में काट रहा था और राजस्थान सरकार उसको सहयोग प्रदान कर रही थी. ये तो लाल डायरी में लिखा हुआ है, उसका जवाब देना चाहिए. लाल डायरी में लिखा हुआ है कि सरकार किस अकर्मण्यता के साथ काम करती है, उसके चलते हुए मुख्यमंत्री के पुत्र को मेंशन करके लिखा हुआ है कि ये पापा की सरकार कभी दोबारा इसीलिए रिपीट नहीं होती और अब की बार भी बुरी तरह से हारने वाली है. जवाब कांग्रेस को देना चाहिए. आप कहते हैं जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए. सर, कल अशोक गहलोत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. वो ये कहते हैं, देखिए, उनको महादेव ऐप की याद आती है जब छत्तीसगढ़ का इलेक्शन होता है, लाल डायरी की याद आती है जब राजस्थान में इलेक्शन है, और उसके बाद सब भूल जाएंगे. तो आप क्या कहना चाहेंगे अशोक गहलोत जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह कमिटमेंट किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके पेपर लीक करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा. राजस्थान में बड़े बड़े घोटाले करने वाले एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा. राजस्थान में भ्रष्टाचार के द्वारा अकूत संपदा कमाने वाले किसी भी नेता या अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा. ये हमारा वादा है राजस्थान की जनता से कि राजस्थान के गरीबों के निमित्त निवेश किया जाने वाला एक एक पैसा जो किसी ने भी
भ्रष्टाचार करके हड़पा है, निगला है, उंगली मुंह में डाल करके उसको उगलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, प्रतिबद्ध है और काम करेगी। अच्छा, आपने सब मैनिफेस्टो की बात की। जब हम दोनों पार्टीज का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी तो लगातार रेवड़ी कल्चर, फ्रीबीज के खिलाफ है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपने उन्हीं के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में वो भी केजी से पीजी एजुकेशन की बात करते हैं, वो यहाँ पर भाजपा के मैनिफेस्टो में उसकी चर्चा है। गैस सिलेंडर सस्ते में देने की बात है तो भाजपा वहां भी compete कर रही है। तो वेलफेयर स्कीम्स और रेवड़िया, इसमें क्या एक थिन डिवाइडिंग लाइन है, और क्या भाजपा ने फाइनली ये मान लिया है कि वेलफेयर स्कीम्स भी जरूरी हैं? देखिए, पहली बात तो कॉपी पेस्ट करने की नौबत तब आती जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके बाद में, कांग्रेस के बाद में मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया होता, रिलीज़ किया होता। हम तो 8 दिन पहले कर चुके थे, तो मुझे लगता है कॉपी पेस्ट तो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का किया। दूसरी बात, देखिए, फ्रीबीज में और वेलफेयर स्कीम्स में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरते समय ये वादे कर रही है। इससे पहले का इतिहास भी उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात का दावा और वादा किया था कि हम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। हमको जब जब भी अवसर मिला, राजस्थान में अंत्योदय से लेकर के माननीय मोदी जी के ग्राम विकास तक, हमने हमेशा ही उस दृष्टिकोण से काम किया। हमने जब घोषणा की, हमने तो किसी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था माननीय मोदी जी ने हर घर तक बिजली दी, हर घर तक गैस का चूल्हा दिया, हर घर तक शौचालय दिया। हमने तो घोषणा पत्र में नहीं लिखा था। हमने तो घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, फिर भी किया। सरकार बनाने के रास्ते में जाते हुए जो घोषणाएं हमने की है, वो घोषणाएं हम 5 साल में पूरा करेंगे, ये विजन डॉक्यूमेंट है। लेकिन जिस सरकार ने, ये जानते हुए कि जनता को हम डिलीवर करने में फेल हो गए हैं, 2018 के राजस्थान संकल्प पत्र में जो बातें की गई थी, उसमें पहले पन्ने की पहली लाइन से आखिरी पन्ने की आखिरी लाइन तक हम 95%, 96% तक डिलीवर नहीं कर पाए। तब वो अपनी सत्ता की कुर्सी पर चिपके रहने के लिए, लोगों का उन विषयों से ध्यान हटाने के लिए नया आईना उनके सामने लेकर के आए, तब वो फ्रीबीज होती हैं। बिना किसी आधार के, बिना किसी पूर्व तैयारी के आनन फानन में घोषणाएं करना और फिर उनको पूरा न कर पाना। राजस्थान से बेहतर उदाहरण कहाँ मिलेगा? 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल देने की बात करते हैं, 14 लाख को दे पाते हैं, और वो भी खटारा, कभी ब्लास्ट होते हैं, कभी गर्म होकर के बंद हो जाते हैं। जो मार्केट में ऑब्सोलीट मॉडल से वो ला करके आप लोगों को दे करके भ्रष्टाचार के माध्यम से उससे पैसा कमाने के लिए योजनाएं बनाते हो। अन्नपूर्णा किट बना करके प्रदेश की जनता को भेजते हो, और उसको प्रदेश की सरकार की लेबोरेटरीज ये कह देती कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और उसको आप दबाने के लिए लीपापोती करते हो। तो इन घोषणाओं में जो फ्रीबीज की तरह की जाती हैं, उनमें और एक पूरी व्यापक तैयारी के साथ में अपना विजन रखने में, इन दोनों का फर्क निश्चित रूप से समझना होगा। अच्छा, और गजेंद्र सिंह जी, एक और कांग्रेस आरोप ये लगाती है कि जब भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं होता है तो वो राम मंदिर की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है। इस आरोप में कितना दम है सर? देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए न कभी चुनावी मुद्दा था और न होगा। राम भारत के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, भारत के लोगों के राष्ट्रीय चिति, उनके जो है मान्यताओं का प्रतीक है। राम का चरित्र भारत के लोगों के लिए, समाज के लिए मर्यादा का विषय है। गांव में जब कोई लड़की शादी होकर के जाती है ना साहब, गरीब परिवार में, तो भी बुज़ुर्ग महिलाएं जो कहीं फॉर्मल एजुकेशन में नहीं गई, वो घूंघट उठा करके देखती हैं और कहती हैं कि सीता के समान होना। उस चरित्र को, जिसको भारत का आम आदमी जिसको आदर्श मानता है, उसको चुनाव का मुद्दा बनाने का षड्यंत्र और पाप तो जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। और वहाँ से आगे बढ़ कर के हम देखें, सनातन के विषय पर चर्चा किसने प्रारंभ की? सनातन ताकतवर हो जाएगा अगर मोदी जीता, इसलिए मोदी को हराना है, ये बयान किसने दिया था? सनातन कोरोना के जैसा है, सनातन एड्स के जैसा है, सनातन डेंगू के जैसा है, सनातन मलेरिया के जैसा है।
ये राग अलापना इंडी अलायंस के किन लोगों ने किया था, और उनके साथ संवेद स्वर में जो है ये राग कितने सारे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अलापा था, ये किसने प्रारंभ किया था। और अब क्योंकि जनता सामने से मुखर होकर के इन विषयों पर आपको निपटाने पे चली है, तब आप इसको भारतीय जनता पार्टी पर चिपकाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये तो बेशर्मी और बेहयाई की हद हो गई। आई थिंक आपने एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है गजेंद्र सिंह जी इस पूरे मसले पर। और ऐसा एक और मसला जो कांग्रेस बार बार उठाती है, क्योंकि वो कहती है भाजपा उठाती है, वो है कन्हैया लाल का केस। अब उसमें अशोक गहलोत का ये आरोप है कि हमने तो 3 से 4 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया, उनको एनआईए को सौंप दिया गया है, तो हम पे जिम्मेदारी क्यों डाल रही है भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर, अनलेस ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन बीजेपी का अकेला मकसद है। पहली बात, उन लड़कों को 2 साहसी युवकों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। दूसरी बात, इस घटना के बाद के बजाय इसके पहले की कड़ियां देखिए। एक गरीब टेलर का काम करने वाला छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी, उसको धमकियां मिलती है, टेलीफोन करके धमकी दी जाती है, वो पुलिस थाने में जाता है, जा कर के अपनी शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस अनसुना कर देती है। दूसरी बार जा कर के फिर पुलिस में धमकी मिलने पर लिखित में शिकायत कराता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। 2-4 इधर उधर के लोगों से सिफारिश कराने के बाद में पुलिस उसको बुलाती है, जिन टेलीफोन नंबर से धमकियां मिली होती है उनको बुलाती है, और उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, उस पर दबाव डाल करके उसी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है कि इन जो धमकाने वाले लोग हैं इनसे तुम हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लो, उससे लिखित में माफ़ी मंगाती है। फिर धमकियां आने का दौर नहीं थमता और उसको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, ये धमकियां दी जाती है। तब वो फिर पुलिस के पास जाकर के गुहार लगाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दो। उसकी दुकान की रैकी होती है, वो जाकर के फिर पुलिस में कंप्लेन करता है, तो कहते हैं कि तुम कोई आए तो हमको बता देना। दुकान 7 दिन तक बंद रखने के बाद गरीब आदमी जाकर के अपनी दुकान खोलता है। खोलने के बाद में उसको पता चलता है कि कल भी रैकी करके गए थे, फिर पुलिस को जाकर संपर्क करता है, तो कहता है कि 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी, जब कोई तुम्हारे यहाँ आ जाए तब मुझे हमको सूचना कर देना। और उसके बाद में क्या होता है, जो कितना खौफनाक था, पूरा देश का दिल दहल गया था कि सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब बताइए कि जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री जिनके अधीन राजस्थान की पुलिस काम कर रही थी, उनकी विफलता की जिम्मेदारी का ठीकरा वो दूसरों पर फोड़ के बच निकलना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा और जिम्मेदारी के साथ में कहूँगा कि कन्हैया लाल टेलर की हत्या का अगर कोई पहला दोषी है, वो अशोक गहलोत राजस्थान के गृह मंत्री होने के नाते हैं, जिनकी पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे पाई और पुलिस पर कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने इस तरह के फौरी बयान देकर के इन दंगाइयों को संरक्षण देने और ऐसी मानसिकता को संरक्षण देने का काम किया। ये कन्हैया लाल टेलर को हत्या करने और सिर तन से जुदा करने वाले लोग का नारा देने वाले लोग और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को प्रश्रय क्यों मिलता है? क्योंकि राजस्थान में होने वाली हर ऐसी सांप्रदायिक घटना पर तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए उनको संरक्षण दिया जाता है। जांच में संरक्षण होता है, गिरफ्तारी में संरक्षण होता है, मुकदमा दर्ज करने में संरक्षण होता है, मुआवजा देने में संरक्षण होता है। इस तुष्टीकरण के कारण से इस तरह की नौबत उपजती है, इनसे बच निकल नहीं सकती। इसके पाप के कालिक से जो है आप ऊपर से लेकर नीचे तक रंगे हुए हैं, आप कभी इससे बच नहीं पाएंगे। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। और आई थिंक देखना होगा गजेंद्र सिंह जी, वाकई में मुद्दा कितना चुनावों में वोटर्स को प्रभावित करता है, क्योंकि वाकई में जो घटना हुई है दिल दहलाने वाली है और इसके लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। सर, आखिरी सवाल है, राजस्थान में कहा जाता है कि भाजपा के बहुत सारे चेहरे, अब वसुंधरा राजे को तो लेकर प्रोजेक्ट नहीं किया गया इस इलेक्शंस में एज अ मुख्यमंत्री, लेकिन क्या गजेंद्र सिंह शेखावत विलिंग होंगे टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इन केस द बीजेपी विंस द स्टेट? वुड यू बी विलिंग टू relinquish your position at the center? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा ये विषय कभी नहीं होता, क्योंकि हमारा दर्शन ये है दैट नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड and the person is at the last in the bottom. Whosoever is fit for working as chief minister or whatever role he may takes, he may be given
जिसको राजस्थान की राजनीति के लिए उपयुक्त समझेंगे वो राजस्थान में भेजेंगे, जिसको केंद्र में काम करना है उसको केंद्र की सरकार का हिस्सा बनाएंगे, जिसके लिए लगता है कि उसको संगठन में जाकर के काम करना ज़्यादा उपयुक्त है, दल के हित में ज़्यादा है, वहाँ वो उसको उसकी जिम्मेदारी देंगे। जो देश दल की राज्य के लिए जहाँ उपयोगी हो उसको वो जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी के लिए हम सब लोग काम करेंगे, और जिसको जिम्मेदारी मिलती है उसको सफल बनाने के लिए भी हम सब लोग काम करेंगे पूरे प्राण और पूरे प्रण की ऊर्जा से। Whosoever is given the responsibility and assigned to work as चीफ मिनिस्टर, वो सक्सेसफुल हो, वो यशस्वी हो और राजस्थान को देश का ग्रोथ इंजन बना सके, उसको हम सब मिलकर के उसका सहयोग करेंगे, पूरी ताकत से उसके साथ जुटेंगे। ठीक है। और गजेंद्र सिंह जी, यही होता है जब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन से आप बात करते हैं, जब एक मुश्किल सवाल तो दागा जाता है लेकिन वो इतने सीजन्ड होते हैं कि इशारों में उसका जवाब दे देते हैं। आपने बहुत हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए सब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विशिंग यू all the very best. May the best team win. The voters will decide tomorrow on who's going to be ruling the state of Rajasthan. Thank you. Thank you, sir, for your time.